ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹਰ ਮਨ ਭਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਧ ਪਾਈ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਚੱਲੈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਬਨ ਪੱਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਹਰ ਨੇਚਲ ਹਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਹਰ ਨੇਚਲ ਹਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦਾ ਰਮਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਚੌਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਥਾਨਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਗ ਮਾਝ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਝ ਰਾਗ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਮੱਧਮ ਪੰਚ ਅਤੇ ਧੈਵਤ ਸ਼ੁੱਧ ਗੰਧਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰ ਅਤੇ ਬਾਦੀ ਛੜਜ ਸੰਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਭ ਤੇ ਅਨਵਾਦੀ ਗੰਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਰਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਧੁਮਾਧਵੀ ਅਰ ਮਲਾਰ ਸੁਰਜਾਨ ਇਨਮਲ ਮਾਝ ਬਖਾਨਹੀ ਲੀਜੋ ਗੁਣਜਨ ਮਾਨ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਤਾਲ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰਠ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਰੰਗ ਧਨਾਸਰੀ ਨਟ ਇਹ ਪੰਜੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ
ਮਾਝ ਰਾਗ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਗਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਈਏ ਸਨ ਉਹ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਗ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਾਝ ਰਾਗ, ਇੱਕ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹਾਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਉਚਾਰੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਆਰੰਭ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਝ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੌਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੀ ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਮਾਝ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 94 ਤੋਂ ਰਾਗ ਮਾਝ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਰ ਤਾਲ ਨਾਲ। ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੇਤਨਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਣ ਖੋਜਣ ਜਾਹੀ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਹੀ।
ਪੋਹਪ ਮੱਧ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨੇ ਧੰਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਕੋ ਰਮਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਲੀਨ ਪਾਇਆ। ਜੈ ਦੇਵ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤ ਨਾਮ ਉਹ ਸਤ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ, ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 15 ਭਗਤ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਸਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਖੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਜਦ ਹੋ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ। ਪਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ। ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਛਰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਵਾਈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੋ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਭਉ ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੂ।
पर उन्हां सारियां दे उत्ते मौत का डर जरूर है। परमेश्वर काल तो भी बाहर है। करता पुरख निरभव, संसार दे विच जिहड़ा मनुख निरभव हो जे वो निर्वैर नहीं रहिंदा। वो जने खने नूं तंग करदा, दुख दिंदा है, पर परमेश्वर जिथे निरभव है उत्थे निर्वैर भी है। वो सारियां नूं प्यार करने वाला है। दसवें प्रीतम जी लिखदे, हाथी की चिंगार पाछै, हाथी की चिंगार पाछै, चींटी की पुकार पहले सुनीयत है। कीड़ी, हुण कीड़ी की आवाज़ आपां नूं नहीं सुणदी, हाथी तो बड़ा उची चीका मारदा है, पर परमेश्वर के दर ते हाथी की आवाज़ तो पहला कीड़ी की आवाज़ सुनी जाती है। इसदा अर्थ बई उस दे दर ते हंकारियां दे नालों निमरता वालियां दी आवाज़ पहला सुनी जाती है, क्योंकि वह गरीब नवाज है, गरीबां नूं पहला नवाजदा है। हाथी की चिंगार पाछै, चींटी की पुकार पहले सुनीयत है। दसवें पातशाह जी दे बचन, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हौ संभल थकी जी ओ कदे ना बोलै कौरा, कौड़ा बोल ना जानै पूर्ण भगवानै, औगण को ना चितारे। वो किसी के औगण नूं नहीं चितारदा। ये क्यों? क्योंकि वो निरभव दे नाल निर्वैर भी है, वो किसी नाल वैर नहीं रखदा। अकाल, उस तो बगैर सारी सृष्टि काल दे विच आउंदी है, काल दे घेरे च है। सारे शरीरां दी मौत है, मच्छी तो लैके मच्छर तो लैके हाथी तक सारे शरीर बनते तो ढहंदे रहिंदे आ। जिवें नौवें प्रीतम लिखते हैं, बई रोण वालिओ किनूं रोने हो, पवने मैं पवन समाया, ज्योति मैं ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक, रोवन हारे की कवन टेक। आत्मा निकल जाती है, पंजे तत्त अलग अलग हो जाते हैं, शरीर खिंड जाता है, इसका स्वरूप खत्म हो जाता है। पर परमेश्वर जो चक्कर चिहन अर वर्ण जाति अर पात नाहन, जे रूप रंग अर रेख पेख कोऊ कह न सकत कहे। पर अचल मूर्त सदा रहन वाला, अचल हुंदा जिहड़ा चलदा नहीं जांदा नहीं कदे किते भी। तुसीं जिथे बैठे हो उहनूं उत्थे जान सकदे हो, उहनूं जानन वास्ते सानूं किते चल के जाण दी लोड़ नहीं। तुसीं जिथे भी खड़ गए उत्थे ही टक्कर जूगा। भगतां नूं कई बारी मिले, जिथे उन्होंने याद किया उत्थे मिल गया। इस करके वो परमेश्वर हर थां ते कण कण दे विच रमिया होया है। वो परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा जो अद्विती है, एक है, अद्विती भाव उहदे वर्गा दूसरा नहीं। निरभव निर्वैर अकाल, वो काल तो बाहर है। ये सृष्टि सारी काल दे घेरे च है, वो अकाल है। काल का मतलब मौत भी हुंदी है, काल का मतलब समा भी हुंदा है। उहदे समय का कोई पता नहीं। कहता आद सच, सब तो पहला वो सी। ये नहीं पता किन्ना कुछ चिर पहला, ये नहीं पता भी वो कदों सीगा, क्योंकि उहदे काल का, उहदे प्रगट होने का समा कोई नहीं पता किसी नूं। जे किसी नूं पता हुंदा तो फिर उन्होंने वेदां ग्रंथां विच जां कुरान पुराण आदि विच लिखिया हुंदा, वक्त न पायो कादियाँ जे लिखन लेख कुरान, वेल न पाईया पंडिती जे लिखन वेद पुराण, वक्त न पायो कादियाँ। जे काजियां नूं पता हुंदा सृष्टि कदों बनी, सानूं तां सृष्टि बनदा भी नहीं पता गा, उदों पहलां वो सीगा। उस तो शब्द पैदा होया, ध्यान दिओ, साचे ते पवना पिया जदों बोलिया तो उस तो शब्द पैदा होया। और ये शब्द नूं सारे ही धर्मां वालियां ने मन्निया। चीन वालियां ने इस नूं लोगोस कहा और हिंदू लोगों ने इस नूं शब्द कहा, असीं इहनूं शब्द कहने हाँ। और मुसलमान वीरां ने इस नूं कलमा कहा। उदघोष होया, सैंस नूं समझ नहीं आई, वो कहंदे खड़का होया। जिहड़ी अखर की समझ ना आवे वो सानूं खड़का लगदा, ये कहंदे पहला खड़का होया। पर बाबे नानक ने सानूं दस्सिया भी खड़का नहीं सी, वो शब्द सीगा।
सबदे धरती शब्दे आकाश, सबदा शब्द भया प्रकाश। सब तो पहला उस शब्द पैदा होया जदों बोलिया, साचे ते पवना पया जदों हवा बनी। एका माई जुगत विआई तीन चेले प्रवान। वो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश मनुख नहीं सी, ये तीन तत्त पैदा होए उहदे चों, हवा पानी ते अग अपने विचों पैदा कीती उन्हें, जिन्हां नूं हिंदू मत ने ब्रह्मा विष्णु महेश मन्निया। असल विच तीन तत्त पैदा होए, साचे ते पवना पया, पवना ते जल होए, जल ते त्रै भवन साजिया, घट घट जोत समोए। जिहड़ा ब्रह्म है वो पानी है, आपां सारे पानी की बूंद तो बनते हैं। जिहड़ा सवास है इनू विष्णु मन्निया हिंदू मत ने। सवास सानू सब नू पालदा है, रोटी बिना 2 दिन सर सकता है, पानी बिना सर सकता है, पर सवास बिना एक पल भी नहीं सरदा। तां ते सब तो वड्डी खुराक साडी सवास है। ते सवास जिहड़ा है इस नू हिंदू मत ने विष्णु कहा। ते अग है जिहड़ी इहदा सवाए सब नू इकट्ठे कर देना। किसी दुकान च अग लग जाती है, उत्थे तरह तरह का समान पिया हुंदा है, पर जो अग लगती है सारिया चीज़ां आपां सूंगड़दियां देखते हैं। एका माई जुगत विआई तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक दी आदत है सब नूं इकट्ठे कर देना, ते इहदे 2 अर्थ है। आपां नूं इकत्तर भी कर लिया, ते दूसरा है सब नूं एक बना देना। दुकान दे विच किसी च अग लगी, तरह तरह के रंग बिरंगे समान पे न, पर सारे अग विच मिल के एक सुवाह हो गए। कोई सतनाम सी, मिट्टी बन गई, मिट्टी चों पैदा होए मिट्टी विच ही चले गए। अग का सुभाव है, हिंदू मत वाले कहते शिव जी का सुभाव है। वैसे उन्होंने ये भी नहीं पता गा भी शिव है कौन। आप ही अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहे बिन सजा प्रथम संसारा। शिव कौन है? महादेव को कहत सदा शिव। महादेव अग्नि स्वरूप है, असल विच अग दा भांबड़ है। महादेव जिहड़ा है वो भी कोई स्वरूप शरीर नहीं है। खैर मैं गुरमत अनुसार कह रहा कि वह महादेव भी अग्न है, वह अग्न स्वरूप है। वह तीजा तत्त है, परमेश्वर तो पैदा होया। और परमेश्वर ने इन्हां तिन्नां तत्तां नूं तैयार करके इन्हां दी ड्यूटी लाती भी तुसीं दुनिया बनाओ, तू बना, तू पाल, तू इहनूं खत्म कर दिया कर जदों वधिया ना रहे। कहो सतनाम, वो ढा दिंदा है। तिन्नां दी ड्यूटी ला दी। एका माई जुगत विआई तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण। लाए करना, खत्म करना। एक दी आदत है, दूसरा अर्थ एक दी आदत है बाण, लय कर देना, सब नूं खत्म कर देना। खत्म करना भी जरूरी है, क्योंकि नवा फेर ही बनेगा जब पुराना खत्म होएगा। कोई सतनाम, ये भी उसकी ड्यूटी लाई हुई है। साचे ते पावना पया, शब्द है धरती शब्द आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश। शब्द तो सृष्टि बनी, शब्द तो जीव बने, शब्द तो सूरज बनया, शब्द तो चंद्रमा बनया, शब्द तो ही प्रकाश हो रहा है। तो प्रकाश केवल चंद्रमा सूरज का नहीं, तुहाडे अंदर ज्ञान भी शब्द का प्रकाश है। कोई सतनाम श्री। साडे अंदर जो ज्ञान है ये माँ प्यो तो सीखे हुए शब्दों का प्रकाश है। बचपन में आप कुछ नहीं सी जानते, और बच्चा अपने माँ प्यो को देख देख के उन्होंने कोलों सुन सुन के बोलना सीखिया, करना सीखिया, काम करने सीखिया। ये सारे शब्दों का प्रकाश है। इस करके सूरज चंद्रमा तो भी पहला शब्द सी। नवों सूरज सूरजे, नवों चंद्र चंद्रे, नवों अंधकारे। हनेरा भी उसे शब्द ने पैदा किया होया सी, प्रकाश भी उसे ने किया। नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे। तू प्रकाश रूप भी है, तू हनेरे विच भी है, तू कमलियां बौड़ियां विच भी है, तू सियाणियां विच भी है। जिथे अज्ञानता है उत्थे भी तू है, जिथे ज्ञान है उत्थे भी तू है। वो सारियां विच वसदा है, कोई भी थां उस तो बगैर खाली नहीं है। नमो अंधकारे भाव अज्ञानता रा हनेरा, नमो तेज तेजे भाव ज्ञान। सारी थावां ते उहदा वासा है। गुरु अर्जन देव महाराज जी अपने एक भोले भाले जे सीधे साधे सिख नूं किन्नी तरजीह दिंदे है। बुद्धू दा आवा ग्रंथी सिंह अरदास करदा है, सिख अरदास करदा है, महाराज
बुद्धू ने लंगर की सेवा करती संगतां दी, इहदा आवा पक्का निकले। लेकिन बाहर इको नंद सिख है भाई सीधा जा, ते उस सिख ने गेट खड़काया कि मैं भी लंगर छकना है, पर बुद्धू ने खोलिया नहीं, कहना भी हुण लंगर खत्म हो गया, वरत गया, हुण नहीं मिलना। उन्हें बाहर नहीं खोलिया, हाथ धो के सारी अरदास करन लगे। अंदर खड़ा सिख अरदास करदा बुद्धू दा आवा पक्का, ते बाहरला सिख कहंदा बुद्धू दा आवा कच्चा। वो फिर गल लटाउंदा है, बुद्धू दा आवा पक जावे, वो कहंदा कच्चा। तीजी बार फिर कहा बुद्धू दा आवा पक जावे, बाहरला सिख फिर कहना कच्चा कच्चा कच्चा। ते जदों जाके बुद्धू ने आवा भट्ठा खोलिया इट्टां वाला, ते उहदे विचों गुरु प्यारिओ पिल्लियां इट्टां निकलनियां शुरू हो गईयां। भज्जिया गुरु साहब कोले, महाराज जी तुसीं कहा सी संगत नूं लंगर छका दिओ, मैं लंगर भी छकाता, मेरा आवा फिर भी पिल्ला निकलिया, मैं की करूँगा, मैं तो मर जाऊँगा, मेरे ते कर्जा बहुत चढ़िया, मैं तो कर्जा चक के इट्टां पकाइयां सी। गुरु अर्जन देव जी कहते कोई गलती हो गई हो लंगर छकाउण च? नहीं महाराज कोई गलती नहीं की, नहीं कोई ना कोई तो होई है। कहें जी तुहाडा वो एक सिख आया सीगा, वो सीधा जा आओ महाराज जी, वो कहन लग्या जब सिख ने अरदास की, वो लेट आया, असी गेट बंद कर लिया, तो अरदास की, उन्होंने कहा भी लंगर है नहीं। सिख ने कहा आवा पक जावे, वो कहना कच्चा, तो गुरु अर्जन देव जी कहते फिर नहीं पकदा, फिर तक कच्चा ही रहूगा। हुण कहो सतनाम। भाव सतगुर ने हर थां ते परमेश्वर नूं विखाउण दी ये सानूं तरजीह दित्ती है, सलाह दित्ती है, ज्ञान दिता है कि वह हर थां ते वसदा है। घट घट मैं हर जू वसै, नवों अंधकारे नवों तेज तेजे। ज्ञान वालियां विच भी तू है, अज्ञानता वालियां विच भी तू है, हनेरे विच भी तू है, चानण विच भी तू है। तो शब्द तो प्रकाश होया, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इत्ते चानण होंदियां गुरबिन घोर अंधार। जिन्हों शब्द का ज्ञान नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते सूरज चढ़े ते भी ये अखर कीड़े मकौड़ी लगते आ, समझ नहीं ना आउंदे अज्ञानता करके, तो ਉਹਦੇ वास्ते हनेरा ही आ। जिन्हों ज्ञान हो गया ਉਹਦੇ वास्ते ये शब्द ज्ञान दाते हैं। तो इस करके शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्द है शब्द भया प्रकाश, सगल समग्री शब्द के पाछ है, नानक शब्द घटै घटे आछै। शब्द को चीन भाई, शब्द को खोज भाई, शब्द के चानने एक वस्त पाई। शब्द न जाने से अन्य बोले, अनपढ़ बच्चे जिन्होंने विद्या पढ़ाई का ज्ञान नहीं है। शब्द न जाने से अन्य बोले, जिन्होंने इस गुरबाणी नहीं समझिया, अखरां तो बगैर तो गुरबाणी की समझ भी नहीं आनी। पहला अखर सीखने जरूरी है। गुरु पातशाह खुद कहते हैं गुरमुखी अखर है जेते। असी दौड़ लाई है कि बच्चों को अंग्रेजी सिखानी है, बच्चों को बाहर भेजना है, पर बाणी की कहती है, इतिहास की कहता है, गुरमुखी अखर है जेते, सिख सिख ते सीखै तेते। एक सिख दूजे सिख दे कोलों गुरमुखी पंजाबी जरूर सीखे, क्योंकि गुरबाणी की समझ गुरमुखी नूं पढ़ के आउणी आ। कहो सतनाम श्री। सीखे आप ते अवर सिखाए, आप सीख के अगे भी इन्हां गुरमुखी अखरां दा ज्ञान देवे। कहो सतनाम। ये गुरु साहब दा हुक्म है। मेरे प्रीतम जी कहंदे अकाल मूरत, वो जिहड़ा स्वरूप है वो अकाल है, काल तो बाहर है। वो पुरख है, करता पुरख, वो पुरख है, असी आत्मावां हाँ। ਇਹਦਾ भी उदाहरण बाणी च पिया है। ये जग में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई। अपने नर मादा के जोड़े बने हैं, पशुओं के, पंछियों के, मनुखों के। इस संसार नूं भरिया रखण वास्ते एक जुगत बनाई है, 3 चेले बना के, ब्रह्मा विष्णु महेश बना के ये दुनिया नूं भरी रखण वास्ते परमेश्वर ने इंतजाम किया है। वैसे पुरख परमेश्वरी है, आपां सारे आत्मा करके इस्त्री हाँ। ये जग में पुरख एक है, और सगली नार सवाई। प्रीतम जी अगे कहते वो निरभव है, वो निर्वैर है, अकाल है, वो काल तो बाहर है, वो काल दे विच नहीं आउंदा। अकाल मूरत, मूर्त का एक अर्थ असीं जानिया स्वरूप, लेकिन मूर्त का दूजा अर्थ है मूह प्लस रत। रत हुंदा जुड़िया होया,
मिक्स एक मिक होया। कट तपस्या जब हाँ भयो दवै ते एक रूप होए कहो। वो अकाल है, काल तो बाहर है। मूँह रत वो अपने खुद नाल ही जुड़िया होया, वो किसी दूजे की पूजा नहीं करता। को सतनाम श्री रामचंद्र विष्णु की पूजा करता है। उन्हें देवते अनेका ही दुनिया में आए, अवतार आए, वो सारे किसी ना किसी दूजे नूं पूजते हैं। ये सारे तिन्ने देवते शिव जी के शिवलिंग नूं पूजते हैं। को सतनाम श्री जो गोलमोल पत्थर बनाया, ये सारे उन्होंने पूजते हैं। मतलब ये सारे उस परमेश्वर तो थले है, परमेश्वर इन्हां सारियां तो उत्ते है। तो सतगुरां ने की कहा, पूजा अकाल की, जिहड़ा काल तो बाहर है। ये जिहड़े पार ब्रह्म की देह मोह कोटक विष्णु महेश, ये तीन नहीं है, ये तो करोड़ां ही आ। फिर वो किस तरह? इस देही अंदर सब कुछ वसै, खंड मंडल पाताला। इस देही अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश वसै। तीन देवते हरेक दे अंदर है, क्योंकि तुहाडे तो ही तो अगे शरीर पैदा हो रहे हैं। कोई सतनाम, ब्रह्मा भी तुहाडे विच बैठा है। मारदे भी असी एक दूजे नूं लड़के आ, कदे जंग लग गई, कदे एक दूजे नूं मारता। वो महादेव भी ये विच ही है, ते पालदे भी असी अपने बच्चों के वास्ते रोजी रोटी पैदा करते हैं। वो विष्णु का रूप भी तुसी खुद ही हो। ये सब कुछ 33 करोड़ देवी देवता हर मनुख के अंदर है। यदा भी जवाब बाणी चो मिल जूगा। कायो देवा कायो देवल, भगत पीपा जी। काया ही वड्डा देवता है, काया ही मंदिर है, ये ही पूजन वाला परमेश्वर भी है। घट घट मैं हर जू बस है। कायो देवा कायो देवल, काया पूजो पाती, अपने अंदरों खोजो। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। किसे पत्थर नूं पूजन की लोड़ नहीं है, किसे दूजे नूं पूजन की लोड़ नहीं। तू खुद का ख्याल कर, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति, काया पूजो पाती। काया बहु खंड खोजते, एक ने शरीर नूं खोजिया, एक ने सृष्टि नूं खोजिया। सृष्टि नूं खोजण वाले साइंसदान है, शरीर नूं खोजण वाले गुरमुख है, ब्रह्म ज्ञानी है। को सतनाम। ते दोनों तो मूहरे किहड़ा भला? ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हें नेड़ियों खोज लिया। साइंस ने बाहर जाके खोजिया, हजे उन्होंने उन्ना पता नहीं लग्या जिन्ना ब्रह्म ज्ञानियां नूं जां गुरुआं नूं पता लग्या। को सतनाम सी। जिहड़ियां गल्लां साइंस नूं अज मिलदियां, वो बाबे नानक ने 500 साल पहलां गुरबाणी विच दर्ज करतीआं। इस करके काया बहुखंड खोजते नवनिध पाई। इस काया नूं खोजण वालियां ने 9 निधियां 18 सिद्धियां सब कुछ अंदरों प्राप्त कर लिया। ना किछ आएवो ना किछ जाएवो, कुछ भी आउंदा जांदा नहीं, सब कुछ इत्थे ही आ। राम की दुहाई, ये सब परमेश्वर का हुक्म चल रहा है। राम की दुहाई, दुहाई हुंदा नगारा बजना, किसी का हुक्म चलना। ये परमेश्वर की हुक्म दे विच सब कुछ इत्थे एके थां ते है। राम की दुहाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। पीपा प्रणवै परम तत्त, सतगुर होए लिखावै। ये पीपा सच कहना है कि परमेश्वर परम तत्त जो है वो सोडे सब दे विच पिया है। आपदे अंदरों ही खोज लो। जो कुछ ब्रह्मंड विच हो रहा है वो कल्ले कल्ले पिंडे विच भी है। फिर असी भजीए बाहर नूं खोजन, आपदी अंदरों क्यों ना खोज लीए? पटवारी अपने दफ्तर विच बैठा ही नक्शा कढ़ के साडियां जमीनां देख लैंदा। कोई सतनाम सी। जदों कि जमीनां खेतां विच है, कित्थे वो खेतां विच जाके वेखे शायद समझ ना आवे। नक्शे विचों छोटे रूप च लिखियां होईयां छापियां होईयां वो बड़ी जल्दी समझ आ जांदियां। कोई सतनाम सी। इस तरह ही ब्रह्मंड जिहड़ा है इहदा नक्शा हरेक मनुख दे अंदर है। जे मनुख चाहे तो अपने अंदरों ही जान सकदा। वो परमेश्वर अकाल, काल तो बाहर मूरत, मूरत स्वरूप भी है। वैसे उसका स्वरूप कोई है ही नहीं। तो मूरत का अर्थ है वो खुद नाल ही समाया होया है। दुनिया नूं बना के फिर अपने आपे भी समा गया। कदे कुछ भी नहीं सी मारू राग। अरबद नरब धुंधु कारा, धन न गगना हुक्म अपारा। ना दिन रात चंद न सूरज, सुन समाध लगाएंदा। फिर
अगला शब्द पढ़ लो। सुन समाधि च बैठा सीगा, फिर ये विचों दुनिया बनानी शुरू की। सुनो किए 10 अवतारा, अगला शब्द। फिर सुन दे विचों उन्हें ये सृष्टि साजनी शुरू की। 10 अवतारा तो भाव 10 अवतारां दी गल नहीं, 10 अवतारा तो भावे 10 कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां दे शरीर तैयार करने शुरू किए। को सतनाम। सुन विचों ही कन्न बन गए, सुन विचों ही अखां बन गईयां, सुन विचों ही मूँह बन गया, सुन विचों ही ये बाडी बन गई। कि माँ दे उदर विच किसी ने बनाए आ? माँ ने खुद भी नहीं बनाए। को सतनाम श्री। माँ नूं भी नहीं पता बच्चे की उपज किवें होई आ। जब जन्म होया बच्चे का फिर पता लग्या भी है आ इन्ने अंग फिट करते, कमाल करती। इहदी रचना करने वाला कौन है? सो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 25 प्रकृतियां, 5 तत्त, ये सारा कुछ परमेश्वर ने सुन विचों ही पैदा करता। माता तो केवल संभालती आ, वैसे वो संभाल भी परमेश्वर आप कृपा करके कराउंदा है, लेकिन सारी रचना परमेश्वर आप रच रहा है। रचन वाला खुद जूना विच नहीं आउंदागा, असी जूना विच आए हैं। आ जूनी वो रचन वाला जूना तो बाहर है। सैभंग वो अपनी मर्जी का मालक है, उसनों कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, कोई मंत्री नहीं है, वो अपनी सलाह आप ही करता है। जिन उपाई रंग रवाई बैठा वेखै वख अकेला, वो दुनिया नूं पैदा करके दुनिया नूं बनाउण वाला आप ही है। सहभंग, सहभंग का मतलब है वो अपनी मर्जी नाल बना सकता है, ढा भी सकता है। उन्होंने कोई सलाह देने वाला नहीं, बई इंज नहीं थी इंज कर ना, वो किसी की सलाह मानता है। बहुत लोग बिलकते हैं, हाय साडा बच्चा मर गया, हाय साडा पति मर गया, पत्नी मर गई, रोई चलो। ये तो वही खेड है, उसने जो करना है उन्होंने कोई रोक नहीं सकता। तां ते सतगुरु कहते भाणा मन्नै सो सुख पाए, भाणे विच सुख पाएंदा। रो रा के अखीर 10 दिनों बाद यही कहने चलो छड्डो यार, हुण भोग पै गया, हुण मुड़दा नहीं। कहो सतनाम श्री। फिर भी तो भाणा मनदे आ ना, गुरमुखां ने पहले ही मान लिया। भाई भिखारी वर्गिया ने बच्चे ने मरण तो पहला जान लिया, तो जान के भाणा मान लिया भी इन्हें मरना है। और उसने कोई गुरु साहब अगे अरदास नहीं की मैनू बचा दिओ। जदों कि सिख कहता है कि तुहाडी गुरु अर्जन देव जी नाल सिद्धि आ, तुहानू बहुत प्यार करते आ, तुसी गुरु अर्जन की बेनती करो जी मेरे पुत्र की उम्र थोड़ी होर लम्मी कर दिओ। ते भाई भिखारी कहना गुरमुखा ये गुरमुखां दे काम नहीं, तो फिर किहड़ा बचूगा, फिर भी तो मौत आऊगी। ये परमेश्वर का भाणा है, संजोग विजोग दुरकार चलावे लेखे आवे भाग। सब नूं अपने भागां दा मिलदा, आपां नहीं कहना महाराज नूं, उहदी मर्जी है। इस करके वह अपनी मर्जी का मालक आ। सैभंग गुर प्रसाद, ऐसे परमेश्वर नूं जानन दे लई सानू लोड़ है गुर प्रसाद, गुरु की कृपा लैण दी। अगे शब्द आरंभ हुंदा है धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी। जिस वेले सतगुरु अमरदास जी की शरण विच आउंदे आ, उस वेले इन्हां दे सिर ते माता पिता भी नहीं है, कल्ले ही रह गए। और गुरु प्यारो शरीका कबीला भी उदों मजाक करता होना है जो सिर तो प्यो भी उठ गया, माँ भी उठ गई। लाहौर दे विच इन्हां दा जन्म होया हरिदास दे घर, पर इन्हां नूं नानी ने पालना पोषणा की। और पालना पोषणा करदियां होया थोड़े वड्डे होए तो इन्हां नूं घुंगणियां बेचण दी ड्यूटी लाती। लै पुत्र रोटी कमाउण वास्ते यही काम कर लिया कर, मैं तैनूं छोले उबाल के दे दिया करांगी, नून मिर्चां ला के ते तू बेच आया कर। ये घुंगणियां बेचण जांदे आ। और धुरों ही आई हुई परमेश्वर की रूह सी, पर प्रगट समय नाल ही हुंदी आ। घुंगणियां बेचते रहे। एक दिन इन्हां दे कोल एक साध आया, वो साध कहन लगे बुक बना के मैनू भी दिओ। झोली कर ली उन्हें, कहना मैनू भी दिओ। रामदास जी ने बुक भर के घुंगणियां दा उहदे विचों टोकरी चों उन्हां दी झोली च पाता। वो कहना होर दिओ। इन्हां ने एक बुक होर भर के उन्हां दी झोली च पाता।
वो कहना होर दिओ, इन्हें चक के टोकरी झोली च लटाती ते घरे आ गए। ये उन्हां दी गुरु साहिबां नूं मिलण तो पहलां दी कहानी है। घर आया नूं नानी ने पुछया भी पुत्र किन्ने पैसे बट्टे? कहने माता जी अज तां ना एक साध आ गया, वो बार बार मंगी गया तो मैं उन्होंने सारे फड़ाते, तो जांदा कहन लग्या तू तो शाह है शाह है शाह है, ऐ कह के तुर गया। कोई सतनाम, चल कोई नहीं पत हो जाने। तो समा आया, घुंगणियां बेचते बेचते गोइंदवाल साहब आ गए, किसी संगत नाल आ गए। पता लग्या भी गोइंदवाल संगत बहुत आउंदी है, लोड़ काढ़ दी मां है, उदों तो यह ख्याल होना भी उत्थे मेरिया घुंगणियां छेती विक जाया करनगियां, वध विकणगियां, उत्थे गाहक बहुत पऊगा। पर जदों इत्थे आके घुंगणियां बेचण लगे तो बौली साहब की सेवा चल रही आ, गुरु अमरदास जी सेवा करवा रहे आ, थोड़े ਜਿਹੇ दिन घुंगणियां बेचियां, छड्ड के टोकरी सेवा च ही ला गए। वो मना प्रशादा ही छकना 2 टाइम का, इत्थों ही छक लिया करांगे, आपां सेवा करिए, इन्नी लोग सेवा करते हैं, तू इत्थे व्यापार करन आ गया। छड्ड के घुंगणियां ते उत्थे सेवा करनी शुरू की। एक दिन समा आया, सेवा करते करते गुरु अमरदास महाराज जी की इस बच्चे ते बड़ी निगाह पैंदी है। बार बार अमरदास जी बौली साहब के कोल बैठ के सेवा कराउंदे आ, ये भी टोकरी लैके सेवा करते आ, बहुत सेवा करते आ, बड़ी निगाह पैंदी आ। एक दिन गुरु अमरदास जी के महल कहन लगे, महाराज हाँ दसो, अपनी भानी ब्याहण वाली हो गई आ, कोई वर देखो, चंगा लड़का देखो। अमरदास महाराज जी कहन लगे किहो जिहा होवे, ते सामने वो कुदरती भाई जेठा जी रामदास महाराज ये आ गए। टोकरी खाली हाथ च फड़ी है, मुड़े आउंदे आ मिट्टी सिट के। बौली साहब की खुदाई हो रही सी। माता जी कहन लगे जी इहो जे बच्चे वर्गा होवे, कहंदे इहो जिहा तां फिर इहो ही आ। हुण कहो सतनाम, उत्थों ही सद लिया रामदास जी नूं, पुछया कित्थों आया पुत्र? कहना जी लाहौर तो, हरिदास का पुत्र हाँ, पर हुण मैं अपने नानके घर विच रहिंदा सी, उत्थों घुंगणियां वेचदा सीगा ते इत्थे आए ते सेवा बड़ी लगी ते मैं सेवा च आ गया। कहंदे चंगा फिर असीं तैनूं अपनी लड़की की शादी करांगे तेरे नाल। कहो सतनाम सिंह, कोई अग्गा पिछा नहीं है। तो गुरु अमरदास जी नूं बचन होया दूजे पातशाह दा, निमाणियां दा माण, पहला निमाणा उन्हां नूं जेठा लभिया। कहो सतनाम, जिसदा कोई भी नहीं है, जिसदा कोई भी नहीं है, निमाणा निताणा निघरा निथावा। और भानी का उन्हां दे नाल विआह कर दिता, बीबी भानी का। समा बतीत हुंदा गया, बड़ी सेवा की। हुण तां गुरु घर दे यह मुखी बन के, भाव मुखी का मतलब हंकार च नहीं, भाव हर जिम्मेवारी चक्कन लगे गुरु घर की। आथने मिस्त्रियां मजदूरां दे हटण तो बाद उन्होंने दिहाड़ी देनी, दिहाड़ी वालियां नूं, और फिर कईयां बठल आदि समान आप संभालना। तड़के उन्होंने दे आउण तो पहला पहला सारी तैयारी करके रखनी, काम की चाल बना के रखनी। गुरु अमरदास जी नूं भा गए ते अखीर एक दिन गुरता गद्दी की बख्शिश भी इन्हों कर दी। ते जिस दिन गुरता गद्दी ते बैठे ते उन्होंने पहला शब्द उचारिया सीगा, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा। मेरी हालत तू तो जानदा ही आ गुरु, जिहो जिहा मैं सीगा रुलदा खुलदा, शरीके वाले भी चंगा नहीं सी समझदे। अज जदों हजे जवाई बने बने सीगे ना, तो जो कोई किसी का जवाई बन जाता फिर बड़ा सत्कार करता वो, तो जवाई भी हंकार के विफलन समाना कि मैं इस घर का जवाई हाँ। पर रामदास जी महाराज में इहो जी कोई गल नहीं, जिवें पहला सेवा करते सी उवें फिर करते रहे। एक दिन उन्होंने शरीके कबीले वाले बंदे लाहौर तो आए, वो किते जा रहे सी गाहां यात्रा ते गंगा वल नूं। लोग उदों गंगा वल बहुते जांदे सी। कहते चलो यार जाते जाते आप हरदास के पुत्र का पता लै लीए। कहते गोंदवाल रहिंदा वो, गुरु साहब अमरदास के घरे विआहिया होया। कहते चलो, वो सारे जोटी बनी 5-7 10 की गोइंदवाल साहब आ गए। ਜਾਂ आके की वेखते है कि जिमें संगतां सेवा कर रही हैं, उवें रामदास के हथ में टोकरी फड़ी हुई आ।
शरीर ते धूड़ा पिया होया, काम करदे धूड़ा पैना ही है। और वेख के उस नूं पता है, पिंड वाले शरीके कबीले वाले कहंदे आ, ओ जेठिया और तू तो साडी नाकी वड्डती हो, और तू खतरियां ना मुंडा, इस घर का जवाई ते तू मजदूरां वांगू टोकरी चक्की फिरदा, कित्थे तेरा बापू, सानू मिला। बापू सौहरे नूं भी कहंदे, चल तेरे बापू नूं मिलीए। रामदास जी मूरे मूरे तुर पे ते मगर मगर शरीके कबीले वाले बुढ़े तुर पे 10-12। वो सारे गुरु अमरदास जी कोल आ गए जिथे वो बैठे सीगे। आके ना कोई पैरी पैना, ना कोई सत श्री अकाल। कहने महाराज माड़ा मोटा तो सोच लेंदे। कहने की ये साडा मुंडा है। जदों गरीबी हुंदी है ना, सकियां नूं भी कहंदे आ पता नहीं कौन है, कोई नौकर चाकर होना, कोई सतनाम सी। ते जदों कोई दूर दी रिश्तेदारी दा अफसर लग जाए, ये साडे मामे दी भूआ दी लड़की दा मुंडा है भाई, कौ सतनाम सी। फिर लम्मी सिगिरी पा के भी आपदा बना लेंदे आ। अज गुरु अमरदास जी दे घरे विआहे गए तो हुण उन्हां दे मालक बन के आ गए। कहने जी तुसीं कुछ तां सोचदे, तुहाडे घर दा इह जवाई है साडा मुंडा, इनू कोई होर काम ला देंदे, इनू भी टोकरी चका छड्डी आ। गुरु अमरदास जी अपनी मस्ती विच आ गए। कहने भाई केड़ा मुंडा सोडा, ये जेठा केड़ी टोकरी, आ देखो टोकरी हथ च फड़ी आ, गर्दा पिया पिंडे ते चोलियां ते कपड़ियां ते। ओह ये टोकरी नहीं, ये तो छतर है, छतर। ये सिर ते छतर झुलेगा, ये कोई सतनाम। ये धूड़ा नहीं, ये सेंट छिड़किया सी। किसी वेले ये गल गुरु नानक जी ने गुरु अंगद देव जी नूं कही सी, अज अमरदास जी ने बख्शिश करती। ये टोकरी नहीं हैगी, इन टोकन समझो, ये सिर ते छतर झुलना है। तो भाई गुरदास जी ने अगे जाके फिर लिखिया, जो छतर झुलिया, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, दिता लईए अपना अन दिता किछ हथ न आवे। असल विच रामदास महाराज जी ने यह चीज़ लैनी सी, पिछे इन्हां दे वड्डियां ने यह चीज़ गुरु घर नूं सौंपी सी। कहो सतनाम, अज लैण दा समा आ गया सीगा। वो बड़ी कहानी लम्मी है। वो वेदां दे वेदांती जिहड़े सन, वो आए सन। एक वारी वेदां दी कथा करदे करदे वो 10वें पातशाह ने कहानी लिखी है, बेदी ते सोढ़ी कित्थों बने। गुरु रामदास सोढ़ियां दा पुत्र है, खत्रियां दा पुत्र है, बाबा नानक बेदियां दा पुत्र है। खैर तो गुरु रामदास जी नूं ये बख्शा होईयां। अगे जाके उन्होंने गुरता गद्दी सौंपी। गुरता गद्दी ते बैठ के कहंदे, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबे तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। मैं तो रुलदा फिरदा सी, कोई मेरी गल नहीं सी पुछदा, कोई मैनू सियाणदा नहीं सी। गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे, मैनू कीड़े नू थापड़ा दे के राजा बनाता। कोई सतनाम सी। तो अज ये माझ राग नू इहो जिहे शब्दां तो आरंभ करदे आ। चौथे पातशाह जी का पहला शब्द माझ राग दा, हर हर नाम मैं हर मन भाया। मैनू गुरु का बख्शिया नाम बड़ा चंगा लगे। बड़ भागी हर नाम ते आया, वड्डे भागां दे नाल नाम सानू मिलदा है। रामदास जी नूं मिलिया, उन्होंने फील किया, वो सानू दसदे आ भलिओ ये नाम वड्डे भागां नाल मिलदा है। बड़ भागी हर नाम ते आया, वड्डे भागां नाल जपिया जांदा। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, ये नाम की पावर मेरे अंदर पूरे गुरु राम अमरदास जी ने रख दी। को बिरला गुरमत चलै जियो, गुरु तो सब ते कृपा करदा है, कोई बिरला बिरला इस गुरमत अनुसार दिते नाम के मुताबिक चलदा है। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मैं गुरु का बख्शिया ये नाम अपने पल्ले घुट के बन लिया। बीबियां दे कोले ना कोई कीमती चीज़ होवे ते सब तो नेड़े उन्हां दी चुन्नी हुंदी आ, ते चुन्नी विच घुट के बन लैंदे आ, बार बार चुन्नी दी गंढ नूं संभाल के रखदे आ। इसे तरह सिख ने ये हरि दे नाम नूं हिरदे विच गंढ दे के रखना, ऐसी गंढ कि कोई खोल ना सके, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी मारो खिच तड़ी।
ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਿੱਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੱਥੋਂ। ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਬਨ ਪੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਹਰ ਨੇਚਲ ਹਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਲ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ। ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਟੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਭਜਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਗੁਪਤੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੈ ਬਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਇਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਧਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਇਆ। ਸਖਾਈ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਸਖਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤ ਗਰਮ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੋ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ। ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ। ਹਉ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜੇਵੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀਟ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ। ਹੇ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜੀਓ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਮਾਤ ਗਰਮ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਿਰ ਮੋਰਾ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੁਹਾਰੋ ਧੋਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਪਾਓ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।